हमें तो यहाँ पे सब चीज मिलता है, खाना पीना चाय हुई सुबह सब चीज मिलता है, सिर्फ एक बाथरूम की परेशानी है बस। दीदी 2-3 महीना हो गया टॉयलेट से बहुत परेशानी है। हम लोग सरकारी में जाते हैं, 10 रुपए दे के नहाते हैं, बाथरूम करके आते हैं। हाँ, चोरी का भी डर है बेटा, यहाँ से कई मोबाइलें चोरी हो गया, सामान भी चोरी हो जाते हैं। Last week, the daily night temperature in Delhi did not go beyond 9 degrees Celsius, and on some nights dipping to as low as 3 degrees. In 2012, the Supreme Court had directed the Delhi government to ensure that no person loses their lives due to the cold conditions. My colleague Tehreem, Roshan and I are on the ground tonight to see the condition of the night shelters available for the city's homeless. The aim of the shelters, according to the Delhi Urban Shelter Improvement Board, is to provide a safe, secure and comfortable environment for the homeless in the city. The facilities that these shelters offer the homeless include drinking water, television, bedding and toilets. Other facilities as per availability include lockers, bathing facilities and hot water. Tonight we will be talking to the people who use these shelters to know what the reality is. The Kabutar Market Shelter has the capacity to house 300 permanent and temporary residents. The temporary shelters are the white tents, while the blue tin ones are permanent. The temporary ones are brought in every winter to make room for the additional number of the homeless who come in. The capacity of the shelter is 300. The shelter houses 130 at the moment to enforce social distancing. According to the caretaker, the shelter is a mixed bag of people, from migrant workers to rag pickers. Shahnaz has lived in the shelter for 30 years and is satisfied with the facilities available. However, she has one major complaint. तो यहाँ पे सब चीज मिलता है, खाना पीना चाय हुई सुबह सब चीज मिलता है, सिर्फ एक बाथरूम की परेशानी है बस। बाथरूम की क्या परेशानी है? कि वहाँ टट्टी उट्टी भर गया, टूट गया, बस यही परेशानी है टट्टी की। दूसरा टॉयलेट आया वो भी ऐसे ही खराब है। अभी कितने टॉयलेट मतलब काम कर रहे हैं? 4 जने काम करते हैं। और लोग कितने हैं यहाँ? लोग तो बहुत जन है। बाथरूम 1 साल से खराब है, 12 बजे हम लोग बाहर नहीं जा सकेंगे, ताला लग जाता है सरकारी में। तो हम लोग अगर रात 2 बजे 3 बजे अगर पेट खराब भी होता है तो कहाँ जाएंगे? तो आप क्या करते हैं? खराब है। आप क्या करते हैं? तो फिर मजबूरी हो जाते हैं तो इधर उधर भागना पड़ता है, बाहर डर से निकलते नहीं, डर लगता है रातों को। तो फिर मजबूरी में क्या करें, फिर किसी तरह से दवा दुबा के फिर 4 बजे जब अजान होता है तब सरकारी में भागते हैं बाथरूम। वो 4 बजे खुलता है? हाँ, वो 4 बजे खुल जाता है अजान के टाइम में, फिर वहीं जाते हैं। यहाँ 1 साल से बंद पड़ा है। This is Shakila Khatun, a resident who has lived here since she was 12 years old. The caretakers who look after the shelter, 6 at a time in shifts, denied her claims. Shakila used to run a small stall, but since the pandemic began, she has been forced to beg for a living. She has lost 2 sons, one as recently as last month, and her Aadhaar card and ration card was stolen from her. While her daughters and husband live inside the shelter, she feels safer outside despite the cold. She tells us about her experience at the shelter. सारी रात ऐसे खुला रहता, कोई भी आए कोई भी जाए, सामान चोरी हो जाता है। इसमें क्या लोग आता है? जो कंबल आपको सरकार से मिलती है वो आप क्यों नहीं यूज करते? कहाँ मिला, अब की तो मिला ही नहीं। But there are other issues that another resident who wished to remain anonymous highlighted. Initially, because one of the caretakers was watching her, she was hesitant about opening up about the problems. अभी हम देख रहे थे कि बहुत सारे चूहे हैं यहाँ, तो आपको उनके वजह से क्या दिक्कतें होती हैं? बच्चे लोग को काट लेते हैं, बड़े को भी काट लेते हैं, खाना खराब कर देते हैं, खाना में घुस जाते हैं इसी के मारे। हाँ, चूहे के बारे में हम लोग बात करें, पहले हम लोग नीचे सोते थे, जिससे बात किए आया बीच आया, उसने देखा तो सब फोल्डिंग दिए, सोने को बैठने को पर्दा लगाया। पहले हम लोग नीचे सोते थे, बच्चे लोगों को नुकसान करते थे, चूहा काट लेते थे। ये फोल्डिंग बेड कब आया? 1 साल हो गया, गर्मी में आए थे। जब विजिट आया तो उनको बतलाया हम लोगों को, बच्चे को चूहा काट लिया तो बच्चा मर गया, छोटा बच्चा। जब बोले हम लोग तब जाकर लोग डाले। यहाँ पर बहुत उल्टा फुल्टा काम होता है, दारू वारू पी के आते हैं, इसमें गाय सब पीता रहता है, बदतमीजी करता है। अब सर्दी के टाइम में अपने बच्चे लोग कहाँ जाए, जवान लड़की है, फिर भी लोग कुछ ना कुछ जर्जर बात में लड़ाई करने लगते हैं, भगाने लगते हैं। ये लोग जो है सब मिले हुए हैं, कुछ रात ड्यूटी वाले हैं वो भी मिले हुए रहते हैं। The residents are helpless and say they have nowhere else to go. यहाँ से कहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ के अलावा तो दिल भी नहीं लगे। 4-5 बच्चे मर गए हमारे यहीं पे, अब मैं कहाँ जाऊँगा बेटा, मुझे भी यहीं मरना।
Despite being handled by the same department of the Delhi government, the Gurdwara Bangla Sahib shelter is in a much better condition. The residents that Tehreem and I spoke to were satisfied with the facilities provided, which included proper bedding and toilets. Manjeet Singh, the supervisor of the shelter, spoke to us about the situation. यहाँ अराउंड 6 तो परमानेंट शेल्टर्स हैं और 6 जो है ये टेम्परेरी जो वाइट वाले हैं पगोड़ा टेंट, ये ओनली फॉर विंटर सीजन है और अराउंड 380 to 400 लोग रह रहे हैं। कोविड की वजह से क्या संख्या कम हो गई है? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, या तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करेंगे तो फिर लोग बाहर सोएंगे ठंड के मारे में, उससे प्रॉब्लम और हो जाएगी ज़्यादा। We did not see anyone wearing masks or maintaining social distancing here or at the Kabutar Market shelter home. We noticed that across the road from the shelter, there were people who were sleeping on the street. We spoke to a woman named Sunita about why she preferred to sleep outside in the cold rather than inside the shelter a few meters away. आंटी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? जैसे पहले स्कूलों में बंद करा था, स्कूल से डायरेक्ट यहाँ से पहले मैं RML में रहती थी, मैं अकेले थी, हॉस्पिटल में रहती थी, 4-5 साल वहाँ पे रही हूँ। इसके बाद यहाँ 2 साल हो गए बेटा। पहले सेल्समैन का काम करती थी बेटा, जैसे छोटी पटरी पे लगा के बैठ के या घूम के पहले सेल कर लेती, चला फिरा जाता था। जब से लॉकडाउन बंद हुआ तो मेरा चलना बंद हो गया, बिल्कुल चला नहीं जाता, हाथ पैर सूज जाते हैं, आँख में ऑपरेशन कराया, सब दिक्कत आती रही है। फिर तो आंटी, आपको पता है कि यहाँ रैन बसेरा है? हाँ, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहते? वहाँ लोग सही नहीं है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, बोलता है। मैं बातों में आके ना परेशान हो जाती हूँ, ना मैं अंदर से बाहर जा सकती हूँ ना कहीं जा पाती हूँ। मैं चलने की वजह से ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। केजरीवाल से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी सुख दुविधा बताना चाहती हूँ। अकेले हूँ, कमा नहीं सकती, कोई जरिया रहने का जगह तो हो जाए कि 2 पैसे कमा सकूँ, कुछ ऐसा काम हो जाए कि 2 पैसे मैं कमा सकूँ, बारिश से बच सकूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। The subscription model is something that keeps Newslaundry afloat, but we need hundreds and thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to Newslaundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।